राम राम जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਏਮ ਐਂਡ ਅਚੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ETT 5994 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਥਰਡ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੈੱਲ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ETT ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ETT ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ 5994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, which of the following can be made into crystal। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਇਰਸ। ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਆ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਆ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਅ ਸੈੱਲ ਵਿਲ ਸਵੈਲ ਅਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ। ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, यानी कि ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਵੈਲ, यानी कि ਸੈੱਲ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, the concentration of water molecules in the surrounding medium, यानी कि ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ as compared to ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, यानी कि ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। जो क्रोमोसोम्स आ वो कादे बने हुए आ? डीएनए दे, प्रोटीन दे, या दोनों डीएनए प्रोटीन या आरएनए दे। तो सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी कि क्रोमोसोम्स डीएनए ते प्रोटीन दोहां दे बने हुए आ। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विच आंदा है। ठीक है जी, थर्ड लेक्चर है ते अज दा लास्ट लेक्चर है। इहदे नाल ही जो तुहानू 71 क्वेश्चंस जो है वो इस लेसन दे करवा दिते गए आ ते तुसी देख सकते हो जी पिछली वीडियोस विच जाके। क्वेश्चन नंबर 4 कहंदे कि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਲੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਰਗਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ? SER, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन ते लिपिड जो कि एसेंशियल है, जरूरी है कादे लई? सैल मैंब्रेन नु बनाउण दे लई, यानी कि सैल मैंब्रेन नु बनाउण दे लई प्रोटीन भी जरूरी है ते लिपिड भी जरूरी है। ठीक है, ते इन्हां नु कौन बनांदा आ? तां याद रखियो इन्हां नु बनांदा है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इहनू कौन बनांदा? इहनू बनांदा है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखियो। इस क्वेश्चन का है जी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज आल्सो नोन एज। हुण इत्थे गल दियो ध्यान, गल वाल ध्यान दियो कि एक हुंदे आ प्रोकैरियोट्स, एक हुंदे आ यूकैरियोट्स। ठीक है जी, जो प्रोकैरियोट्स आ ना तां ओदे विच की प्रेजेंट हुंदा है? न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट हुंदा वा प्रॉपर, यानी कि न्यूक्लियस ते जो दे आस-पास चीज़ां हुंदियां ना वो नजर आ रहीआं हुंदियां किहदे विच? यूकैरियोट्स दे विच। लेकिन जिहदे विच आस-पास न्यूक्लियस दे आस-पास चीज़ां नजर नहीं आंदियां प्रॉपरली, यानी कि न्यूक्लियर रीजन प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हुंदा, जिहनूं असीं कहने अनडिफाइंड हुंदा उहनूं असीं प्रोकैरियोट कहने आ। तां यूकैरियोट की है? जिहदे विच न्यूक्लियर मैंब्रेन, न्यूक्लियर रीजन नजर आंदा है, लेकिन प्रोकैरियोट च प्रॉपरली नजर नहीं आता, कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है, अलग चीज नहीं होंदी। तो हुण सर को क्वेश्चन की कहंदा यार, क्वेश्चन कहंदा कि जो न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड है, जो कि नजर नहीं आता, जेड़ा प्रॉपरली नहीं पता लगता, जो कि प्रोकैरियोट्स दे विच हुंदा है, उहनूं होर की कहंदे आ? उहनूं कहंदे आ जी न्यूक्लियोइड। इहनूं कहंदे न्यूक्लियोइड। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, the cell organelle involved in forming complex sugars from simple sugar।
ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲੀ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਸਮੋਸਿਸ। ਓਸਮੋਸਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ, लो कंसंट्रेशन यानी कि घट मात्रा वाल, ठीक है। तो यही साडे कोल सही डेफिनेशन है, ते सही डेफिनेशन है जी ऑप्शन नंबर ए। मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी दी मूवमेंट होनी है वाटर मॉलिक्यूल दी, किधरों, ज्यादा मात्रा तो घट मात्रा वाल, किधरों, थ्रू ए सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन, यानी कि सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन दे विचों जदों पानी जांदा है ज्यादा मात्रा तो घट मात्रा वाल, ठीक है, उन्होंने असीं की कहने आ, ओसमोसिस कहने आ। ये सही डेफिनेशन है, ये गल तुसी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट आ, पेपर च एज इट इज भी आ जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट, कल असीं क्वेश्चन कीता सी सिल्वर नाइट्रेट दा, तां सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन किहनूं स्टडी करन दे लई सी, तां ओह सी जी गोल्जी अपरेटस। ते तुहानूं दस्सिया भी सी कि सिल्वर नाइट्रेट दा फार्मूला की हुंदा, ओह हुंदा जी AgNO3, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट की जगह AgNO3 भी आ सकता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखियो, किते ना AgNO2 भी लिखा हुंदा, AgNO2 हुंदा सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, हुंदा सिल्वर नाइट्राइट, भुलेखे नाल आपां ये भी पा दिंदे आ, ये नहीं आना, सिल्वर नाइट्रेट ही आना है, आपां कल कीता सी। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ, ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस तो अलावा सैल दा होर केड़ा ऑर्गेनेली आ जिहदे विच डीएनए हुंदा आ, ठीक है, कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ, गोल्जी अपरेटस आ, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तां ध्यान रखियो ये हुंदा जी साडे कोलों माइटोकॉन्ड्रिया, ये है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम सारिआं नूं याद हुंदा, इहनूं असीं कहने पावर हाउस ऑफ द सैल, ठीक है जी, पावर हाउस ऑफ द सैल, यानी कि ये सानू एनर्जी दिंदा है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सैल इहदा खास नाम आ, ये सानू एनर्जी दिंदा। एनर्जी केड़ी फॉर्म च दिंदा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। अगला सवाल, किचन ऑफ द सैल, यानी सैल दा जो किचन आ, यानी कि सैल दे विच जो मेनली फूड बनदा आ, तां ओह किच बनदा, ओह बनदा जी क्लोरोप्लास्ट दे विच। किहदे विच बनदा आ, क्लोरोप्लास्ट दे विच। अच्छा एक चीज होर रखियो, कई बार ना पेपर च सवाल आंदा आ, विच सेल ऑर्गेनेली, कि केड़ा सेल दा ऑर्गेनेली आ, विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, तां भी क्लोरोप्लास्ट। अगर आ जाए फूड फैक्ट्री, ठीक है, तां भी की आऊगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इत्थे किहदी गल कीती है, सेल ऑर्गेनेली दी, सेल ऑर्गेनेली आ, ठीक है। हुण कई बारी क्वेश्चन किद्दां आंदा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आ जाए ना, तां उन्हें पूछा कि प्लांट दा केड़ा पार्ट, तां उहदे विच आंसर आंदा है लीव्स, ठीक है। हुण लीव्स दे अंदर ही क्लोरोप्लास्ट हुंदा है, लेकिन इत्थे सवाल बदल गया है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री। ये सवाल तां कराया कि अगर बाय चांस तुहाडे कोल ना हुण इत्थे अगर इदां दा सवाल आवे जिहड़ा मैं लिखिया आ, तां इहदे विच सपोज करो कि तुहाडे कोल आ गया फ्लावर, ठीक है, नाल आ गया रूट्स, नाल आ गया लीव्स, नाल आ गया नन ऑफ दीज, तां तुसीं किते नन ऑफ दीज ना ला दईओ कि इहदा क्लोरोप्लास्ट हुंदा आ। इदां दे सवाल दे केस दे विच लीव्स लग जांदा हुंदा, ये चीज तुसीं ध्यान रखनी है, ठीक है जी। सवाल ते डिपेंड है कि आंसर की आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल, Which of the following are covered by single membrane? देखो सानू पता है
कि किसी दे उत्ते एक मैंब्रेन हुंदी आ यानी एक परत हुंदी आ, किसी उत्ते डबल यानी कि दो परतां हुंदियां आ। तां हुण इहदे विचों असीं दसना कि किहदे उत्ते एक परत आ ते इहदे नाल तुहाडा ना दो सवाल कवर हो जाने आ। एक तां इह पता लग जाना कि किहदे उत्ते सिंगल मैंब्रेन आ एक परत आ, ते दूसरा सवाल की कवर हो जाना कि किहदे उत्ते दो दो परतां हुंदियां। ठीक है, तां पहला क्वेश्चन की आ, which of the following are covered is covered by a single membrane। इन्हां विचों किहड़ी चीज आ जिहड़ी जिहदे उत्ते सिंगल परत आ एक मैंब्रेन आ, तां याद रखो वैक्यूल। वैक्यूल दे उत्ते की आ एक मैंब्रेन यानी कि प्लास्टिड दे उत्ते भी दो मैंब्रेन आ, न्यूक्लियस दे उत्ते भी दो मैंब्रेन आ, माइटोकॉन्ड्रिया दे उत्ते भी दो मैंब्रेन आ। ते असीं पढ़ के आए आ माइटोकॉन्ड्रिया कोलों न्यूक्लियस वांगू अपना डीएनए भी हुंदा आ, जिस करके ये भी एक अपना वधिया तरीके नाल वखरा ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस वांगू बिहेव करदा आ किसे किसे केस दे विच माइटोकॉन्ड्रिया दी गल करदे। ठीक है, सो इसदा आंसर सी वैक्यूल। क्वेश्चन चलते हैं जी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। इन्हां चों गलत स्टेटमेंट लभनी आ। पहली स्टेटमेंट की है जी गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्वड विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम की लाइसोसोम बनाने के लिए गोल्जी एपरेटस की जरूरत पैंदी है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी, ये गलत नहीं है। अगला क्या है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ते प्लास्टिड। लो जी जो मैं ऊपर दस दिया सी कि न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ते प्लास्टिड बारे गल नहीं सी कीती। प्लास्टिड के अंदर भी अपना डीएनए हुंदा आ, इस करके ये अपना प्रोटीन बना सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हुण अगर सवाल आ जाए कि किहड़े-किहड़े सैल दे ऑर्गेनल ही आ जिहदे विच डीएनए हुंदा आ जिस करके वो अपना प्रोटीन बना सकते हैं, ते आंसर की आ न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ते प्लास्टिड। इस तो अलावा जो भी ऑप्शन आएगा वो रॉन्ग ऑप्शन होएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट साडे कोलों सही है। तीजा माइटोकॉन्ड्रिया नु पावर हाउस ऑफ द सैल कहने आ क्योंकि इहदे विच एटीपी बनदा है, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर पहले तीन ठीक है तो गलत किहड़ा होया चौथा। साइटोप्लाज्म नु प्रोटोप्लाज्म कहंदे आ, नहीं जी साइटोप्लाज्म अलग चीज आ, प्रोटोप्लाज्म अलग चीज। ठीक है जी, तुहानू मैं होमवर्क दिता सी प्रोटोप्लाज्म बारे, अगर तुसी कीता ते बहुत वधिया, नहीं कीता ते इहनू करना है होमवर्क ही आ, इस करके मैं इहनू कराउण नहीं लगा। देखिए तुसी होमवर्क करदे कि नहीं। अगला क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हुण असीं सही लभना आ। कहंदे एंजाइम जो कि लाइसोसोम दे विच पैक हुंदे आ वो बनदे आ आरईआर दे थ्रू, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे थ्रू बनदे आ। ते या दूसरा ऑप्शन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड ते प्रोटीन बनाते हैं। नहीं जी ये गलत आ। देखो असी क्या सी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम आ वो लिपिड बनाते हैं लेकिन रफ प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। पर असी सही वाली लभनी आ। कहते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लाज्मा मैम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन करता, उन्होंने तोड़ता या नहीं जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं तोड़ता। कौन तोड़ता सानू याद होना, वो तोड़ता जी लाइसोसोम्स, जिन्हों असी सुसाइडल बैग्स भी कहने हैं, जो कि तुसी पहली वीडियो च पढ़िया सी। अगला क्वेश्चन कि जो न्यूक्लियोइड आ ये साडे कोलों जो न्यूक्लियोइड आ ये साडे कोलों न्यूक्लियोप्लाज्म दे अंदर हुंदा आ, यूकैरियोटिक सैल दे अंदर। ठीक है जी, उन्होंने जो आप रॉन्ग लभनी आ। सो जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी गलत आप पढ़ चुके हैं, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर हुंदी आ। सो जो सही जो स्टेटमेंट है वो है जी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम के अंदर पैक हुंदे आ वो किहदे थ्रू बनदे आ, आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनते हैं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। सो वीडियो वधिया लगे तो लाइक कर दियो, फ्रेंड्स नाल शेयर जरूर कर दियो जिन्होंने भी ईटीटी की तैयारी करनी 5994 की। स्पेशली इत्थे साइंस हिंदी ते पंजाबी दी वीडियोस मिलणगियां, साइंस तुहानू प्रॉपरली तैयार करवाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम। लाइसोसोम्स कित्थों बनते आ, लाइसोसोम बनते आ जी गोल्जी अपरेटस तो, असीं ऊपर कर आए हैं क्वेश्चन। अगला लिविंग सैल्स जो डिस्कवर कीते, देखो जो सब तो पहला सैल डिस्कवर कीते सी ना, वो कीते सी रॉबर्ट हुक ने 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਕ ਆਫ ਦਾ ਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉਹ ਡੈਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਡੈਡ ਸੈੱਲ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਸੀ ਜੀ ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, वो ਲੱਭੇ ਸੀ ਜੀ ल्यूवेनहॉक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट जो 29वां क्वेश्चन आ इस पेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ जो ਅੱਜ ਦਾ नहीं 29वां नहीं गलती हो गई, चलो सिलेक्ट द ऑड वन आउट। इन्हां जो
ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। 17ਵਾਂ क्वेश्चन है जी ਅੱਜ ਦਾ कि जो मूवमेंट आ पानी दी सैमी परमेबल मैम्ब्रेन चों इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सबसटेंस डिसॉल्वड इन इट कि ओदा ओदे ते इफेक्ट पैंदा आ ओदे ते प्रभाव पैंदा आ कि किन्नी क जो मात्रा आ ओदे विच डिसॉल्व कीती हुई है। ठीक है, आपां ऑड स्टेटमेंट लभनी है, वक्री स्टेटमेंट लभनी है। दूजी स्टेटमेंट की है साडे कोलों कि जो मैम्ब्रेन्स आ वो कादियां बनियां हुई वा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दियां जो कि प्रोटीन ते लिपिड दी आ। तीसरा क्या कि मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट च घुल जांदे आ वो मैम्ब्रेन चो आसानी नाल पास कर जांदे आ। या लास्ट ऑप्शन है जी प्लाज्मा मैम्ब्रेन कंटेन चिटिन शुगर इन प्लांट्स की जो प्लाज्मा मैम्ब्रेन आ वो प्लांट्स दे विच चिटिन शुगर दी फॉर्म च कह लो प्रेजेंट हुंदी आ या ओदे विच चिटिन शुगर हुंदी आ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੋ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हैगी या पानी दे विच उत्ते डिपेंड करूगा कि पानी की मात्रा ज्यादा कि उस चीज की मात्रा ज्यादा। ते जो मैम्ब्रेन असीं पढ़िया सी वो लिपिड ते प्रोटीन दे बने हुंदे आ ते जो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट च घुल जांदे आ वो मैम्ब्रेन चों पास कर जांदे आ। ये भी इंपॉर्टेंट है, सही चीज आ। पर जो लास्ट आ ये वाली गलत आ जी कि जो प्लाज्मा मैम्ब्रेन आ विच चिटिन शुगर नहीं हुंदी प्लांट्स दे केस दे। सो इस करके ये ऑड वन आउट आ, ये गलत आ। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट वन। लो जी, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। ठीक है, जो सेल दे विच लिपिड मॉलिक्यूल आ ये कौन बनांदा है ते एक ही SER बनांदा या RER बनांदा या गोल्जी अपरेटस या प्लास्टिड्स आपा पढ़ के आए हैं ये बनांदा जी SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि सेल पहला ही जो बने हुए सेल आ उन्हां तो सेल बनते हैं, नवा सेल नहीं बनता। यानी कि जो सेल पहला ही है उन्हां तो ही नवे सेल बनते हैं। ये स्टेटमेंट किहने कही सी? ये कही सी जी विर्चो ने या वर्चो या विर्चो जो भी नाम आ। ऑप्शन नंबर बी है जी इन्हां दा आंसर विर्चो जे मैं कहां तां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी किहने दित्ती सी? आपां पहला भी पढ़िया होया दित्ती सी श्लेडन एंड श्वान ने। ठीक है जी, क्वेश्चन नेक्स्ट साढ़े 3 क्वेश्चन रह गए जी, ये 71 क्वेश्चन पूरे हो जाने हैं। The only cell organelle seen in prokaryotic cell। देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बारे आप समझ आए हैं, पर कहते हैं कि केड़ा सेल ऑर्गेनेली आ जो कि प्रोकैरियोटिक सेल दे विच नजर आंदा है, तो याद रखियो राइबोसोम। सिर्फ राइबोसोम नजर आंदा, बाकी नहीं नजर आंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनेली विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन। देखो आप पढ़ के आए हैं कि जो सैल ऑर्गेनेली आ उन्हां दे विच कोई ना कोई मैम्ब्रेन हुंदी आ, किसी उत्ते सिंगल आ किसी उत्ते डबल आ। देखो जिद्दां आपां सिंगल दी एग्जांपल लई सी वैक्यूल वाली, डबल दी असीं करके आए सी प्लास्टिड वाली या माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। पर हुण कहंदे आ इदां दा सैल ऑर्गेनेली दसो जिहदे उत्ते कोई भी सैल मैम्ब्रेन नहीं आ, तां ओह है जी राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट आ जी, ओह है जी राइबोसोम। उस तो बाद साडा रह गया जी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जी 1 माइक्रोमीटर। इन्हों ना माइक्रो कहते हैं, आ जो साइन है ना यू वर्गा तुहानू लग रहा, तो एक्चुअल दे विच इहनू कहते हैं जी माइक्रो। ये बनया किदां हुंदा, आ सीधा ते उस तो बाद आ यू वांगू इदां। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर किहदे बराबर हुंदा 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -6 मीटर। सो इत्थे तक साडा जो सैल चैप्टर आ वो कंप्लीट हो गया विद MCQ। अपने वालों कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, हर टॉपिक नू कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई रह गए या कोई कुछ दसना चाहो तो कमेंट बॉक्स ओपन है जी, तुसीं दस सकते हो। वीडियो नू फ्रेंड्स दे नाल शेयर कर दिओ जिहड़े भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं ATT 5994 लई। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे साथ। थैंक यू।